بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے میرے رب، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تجھ سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تیری ہر طرح کی بھلائی کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے حمد کے بعد حمد ہے اس فضل اور احسان پر جو روز افزوں اور فزوں تر ہے، اور ہر وقت ہمیشہ شکر ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کے ثواب کی امید کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں بھرپور نعمتوں سے نوازا اور ہمیں پورے اقدار عطا کیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اصل اور نسل کے اعتبار سے مخلوقات میں سب سے پاکیزہ اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے تابناک ہیں۔ میرے رب کا درود و سلام پیدر پہ ہو آپ پر، آپ کے عظیم حق اور فضل کی تعظیم میں، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو منافست اور مقابلہ آرائی کے ساتھ آپ کے طریقے کی مدد کرنے والے ہیں، تابعین پر، ان لوگوں پر جو اقتداء اور شوق کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، جن چیزوں کی وصیت کی جائے ان میں سب سے بہتر اللہ عز و جل کا تقوی ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اس کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالی کا تقوی دنیا و آخرت میں سب سے بہتر توشہ، عظیم ترین مقصد، روشن ترین مرتبہ اور بلند ترین خصلت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے ساتھ فخر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا تقوی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے، اس کا ترجمہ ہے، میں نے تقوی میں عظمت کو روشن پایا اور اسی سے قیامت کے دن عزت ہے۔ اللہ کا تقوی بہترین توشہ ہے اور سخت دن میں بہترین ذخیرہ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہماری پیغام کا جوہر کیا ہے، ہمارے تشخص کا خلاصہ کیا ہے، اور ہماری تہذیب کا اکسیر کیا ہے؟ بے شک یہ ہمارے مذہبی اقدار اور مصطفی اخلاق ہیں۔ دین اسلام انسانیت کے لیے درستی، فلاح و بہبود، ہدایت اور کامیابی لے کر آیا۔ یہ اپنے عدل و انصاف، رحمت، نرمی، شفقت، شرعی احکام اور مذہبی اقدار کی وجہ سے ہے، جو روحوں کے لیے غذا، دلوں کے لیے تریاق اور دوا، عقلوں کے لیے نور و روشنی اور نفسوں کے لیے پاکی اور رونق ہے۔ مومنوں کی جماعت، تابناک اقدار اور پرکشش حیرت انگیز اخلاق ہی انسان کو اس کے طیش و غرور سے آزاد کر کے حق کے راستوں اور اس کے نور کی طرف، اس کی جہالت اور شرارتوں کی بیڑیوں سے آزاد کر کے اس کی پاکیزگی اور خوشی کی بلندی کی طرف لے آئے۔ خصوصاً ہماری اسلامی اقداری ہیں جو پوری انسانیت کو بغض و کینہ کے بندھنوں سے نکال کر ہم آہنگی، سلو صفائی اور وفا شعاری کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کے مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئی۔ مذہبی اقدار ہر اس مشکل کا علاج کرنے والا مرہم ہے جس کے خطرات نے اس کا انکار کرنے والوں کی عقلوں کو عاجز بنا دیا ہے۔ اللہ نے نفسوں کو ہدایت پر پیدا کیا اور اسلام کے ذریعے ان کے رہنماؤں کے راستے کو روشن کر دیا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ان اقدار میں سب سے بلند خالص ایمان اور صاف ستھری توحید ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، پھر اتباع جو کافی ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ امت مسلمہ، مولا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ آخری اسلامی پیغام کا حامل، نبیوں کے امام، حنفاء کے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ کے محبین کو گرچہ آپ کی ذات کی صحبت نہیں ملی، لیکن آپ کی سانسوں کی صحبت ضرور حاصل رہی۔ ٹھوس محبت، مضبوط اتباع، نہ بدبودار ایجاد بدعت۔ ان لوگوں کو مبارکباد جو اس کے طریقے سے کسی دن غافل نہ رہے اور انہوں نے اس کی محبت میں بہت کچھ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہر طرح کا خیر، چھوٹی بڑی نیکی، پوری ہدایت اور مکمل عدل سموئے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور خلقت میں خوبصورت تھے، تمام معاملات میں میانہ رو اور رحمت تھے۔ اللہ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور ہم نشینوں کے لیے بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا۔ اے وہ بندہ جو محبت کے فضائل کو شمار کرنے کا خواہش مند ہے، تم اپنے اوپر رحم کرو کہ آپ کے فضائل شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اگر تم کہو ریت کے برابر یا کنکریوں کے برابر یا بارش کی بوندوں کے برابر تو ہم کہیں گے اس سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور مسرت داخل کرتے، الفت اور شادمانی بوتے، جذبات کا خیال رکھتے، دلوں کو جوڑتے کہ صبر کے بعد جوڑنے میں بڑا اجر ہے، اور جو دلوں کو جوڑے گا اللہ اسے خطروں کے شر سے بچائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ رضی اللہ
ताला अन्हुम के नजदीक बुलंद मकाम था, यहाँ तक कि वो मोहब्बत और वफादारी में आप पर अपनी जानों और मालों को कुर्बान कर देते थे और आप पर कभी भी किसी को मुकद्दम नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे इस मोहब्बत वफा का तबादला करते। ये ज़ैद बिन हारिसा है। जब अल्लाह ताला का ये फरमान नाजिल हुआ और तुम्हारे लई पालक लड़कों को तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बनाया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने और उनके बाप और कौम के दरमियान इख्तियार दिया। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार किया और कहा, अल्लाह की कसम मैं आपके अलावा किसी को इख्तियार नहीं करूंगा। ग़ज़वा बद्र के दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया तो अंसार के सरदार साद बिन उबादा ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आप हमें हुक्म दें कि हम इन घोड़ों को समुद्रों में झोंक दें तो हम उनमें झोंक देंगे। अगर आप हुक्म दें कि उन्हें बरकिल ग़िमाद तक दौड़ाएं तो हम जरूर ऐसा करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात से खुश हुए और लोगों को बुलाया और वो चल पड़े, हत्ता के बद्र में पड़ाव डाला और फतेह हासिल की। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफा को नहीं भूले। जब वफा का जिक्र किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनकी जिंदगी में और उनकी वफात के बाद जो वफा की उससे बड़ी और बुलंद कोई वफा नहीं। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया, वो कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खदीजा का जिक्र करते तो उनकी तारीफ करते और अच्छी तारीफ करते और फरमाते, वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मेरा इनकार किया, उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुटलाया, और उस वक्त अपने माल से मेरी गमखारी की जब लोगों ने मुझे महरूम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई उन्होंने आपसे कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप कमजोर और नातवा का बोझ खुद उठा लेते हैं, महरूम लोगों को अशिया मुहैया करते हैं, मेहमान की ज़ियाफत करते हैं और हक के रास्ते में पेशवा आने वाली मुसीबतों पर लोगों की मदद करते हैं। मुसलमान भाइयों, क्या वक्त नहीं आया कि हम अपने मजहबी अक़दार और नबवी अखलाक को बुलंद व बाला करें ताकि हमारा आलमी तहजीबी पैगाम इंसानी अमन और आलमी सलामती के क़याम के लिए हो, जो ख्वाहिशात मुहर्रिकात आलूदा मकासिद और मुनाफे से पाक हो। आलम फादिलाना अक़दार व अखलाक के किनारे तभी लग सकता है जब अखलाक की गिरावट को शिकस्त दी जाए और अक़दार के इन्हितात का मुकाबला किया जाए, खुसूसन तब्दीलियों और बदलते हालात और बहरानों और चैलेंजों के जमाने में, खास तौर से वेबसाइटों, चैनलों और इंटरनेट पर, क्योंकि ऐसे मवाद की भरमार हो गई है जो मजहबी अक़दार, दुरुस्त रिवायात और साफ सुथरी फितरतों के खिलाफ है। इसलिए जरूरी है कि अक़दार की हिमायत अफ़कार और रूहों का लाजिमा हो, न कि हवाओं के दोषों पर हो। मादियत के लश्करों और फितनों के सैलाब के जमाने में इन अक़दार के तई उम्मत की जो सूरत हाल है उस पर गायराना नजर डालने से सलफ़ उम्मत के मनहज के मुताबिक किताब व सुन्नत की रोशनी में इन अक़दार पर साबित कदम रहने और इन पर नाज करने की जरूरत जलवगर हो जाती है। कुछ लोगों ने दो वही के नूर के बदले दूसरी चीज को ले लिया और इन अक़दार व अखलाक से मोहब्बत को छोड़कर हक़ाइक़ के बदले मज़ाहिर पर इक्तिफा किया, बजाय इसके कि ये अखलाक उनकी पूरी जिंदगी में बसेरा करे। उन्होंने दरिया के बदले थोड़े पानी पर इक्तिफा किया, इसलिए वो गुलू और बेरुखू के दरमियान जी रहे हैं। और दूसरे लोग इनकार, नाशुक्रिया और एहसान फरामोशी में अपने नफ्सियाती बुहरानों और अखलाकी आलाइशों का शिकार हैं, जिन्होंने तीर तराशने से पहले पर लगा लिए, यानी पूरी तैयारी से पहले मैदान में कूद पड़े और उन्हें गुमान होने लगा कि वो बेगाने हैं, जबकि वो कम अक्ल, बुहरान ज़दा, कमीने, घटिया, कम ज़र्फ, बदनीयत हैं। उनका मकसद वो हमी फवायद और ख्याली बेवक़ाफ़ चीजें हैं। वो गिरगिट की तरह नग बदलते हैं, लोमड़ियों की तरह पैतराबाजी करते हैं और हादिसात और बुहरानों के दस्तरखानों पर गुजारा करते हैं, हालात जौहरों को खोल देते हैं। अल्लाह उनकी जमात को ना बढ़ाए। इसलिए उम्मत पर वाजिब है कि अपनी ताकतों को एकजा करे, अपने वजूद की तामीर दोबारा करे और अपने दुश्मनों का मुकाबला करे। बई तौर के अपने असली अनासिर पर तवज्जो दे, तलवार और तशद्दुद से नहीं बल्कि म्यान रो दीनी शऊर से। इस तरह वो हक के तीरों से बातिल परस्तों के शुबहात, जाहिलों की तावील और गुलू पसंदों की तहरीफ को शिकस्त दे, ताकि वो तशद्दुद पसंदों, मुल्हिदों और बेलगाम लोगों के दरमियान म्यान रो होकर जिए। मेरे दोस्तों, इस वक्त जबकि हमारे आलम इस्लाम के कुछ इलाकों को हादिसात, मसाइब, जलजले और तूफान बहाले जा रहे हैं, हमें मुसीबत और बुहरान ज़दा लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। खुसूसन मगरिब और लीबिया में अल्लाह आफत ज़दा दरना में हमारे भाइयों की मदद करे, उनके साथ लुत्फ का मुआमला करे, उनके मुर्दों पर रहम करे, उनके जख्मियों को आफियत दे और उनके बीमारों को शिफा दे। अल्लाह उनकी कमजोरी पर रहम कर, ऐ अल्लाह तू उनकी कमजोरी पर रहम कर, उनके शिकस्त हाल को जोड़ दे और उनके
मामले का जिम्मा उठा। ऐ अल्लाह वो नंगे पैर हैं उन्हें सवार कर, वो नंगे बदन हैं उन्हें पहना, वो भूखे हैं उन्हें खिला। ऐ शिकस्ता लोगों को जोड़ने वाले, ऐ मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने वाले, बेकसों की मदद और मुसीबत ज़दा लोगों की गमखारी के लिए हमारे महफूज मुल्क से अता के बादल और इमदाद वफा के पुल दराज हो गए हैं। अल्लाह के लिए हम्द व एहसान है। ये निशानियाँ और याद दहानी है, ये ना कहा जाए कुदरत का गजब है। अल्लाह का फरमान है, हम तो लोगों को धमकाने के लिए निशानियाँ भेजते हैं। इसके बाद अल्लाह के बंदो, मजहबी अक़दार की हिमायत करना उम्मत की कामयाब वापसी का रास्ता है, ताकि हम चोटी तक पहुँचने की हिम्मत के साथ दुनिया की क़ियादत करें और इसमें अल्लाह के इरादे के मुताबिक रहनुमाई करने वाले पेशवा बने और उसे नकेलों और लगामों से बांध कर अमन व अदल के सायों की तरफ ले जाएं। क्या अल्लाह के रास्ते में इत्तेहाद हमारे आज़म को जगाएगा और गुमराही ने जो बुना और गढ़ा हम उसे रोशन करेंगे? क्या अल्लाह की नुसरत हमारे शिराजा को इकट्ठा करेगी ताकि हम इस सरगर्दा दुनिया की क़ियादत करें? यह आशा और ये उम्मीद है। अल्लाह ताला से दुरुस्त कौल और सही अमल की तौफीक तलब करते हैं। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अज़मत और जलाल वाले अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़िरत तलब करें और उसकी बारगाह में तौबा करें। बेशक वो बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। अल्लाह के लिए ऐसी हम्द जो दिल को हिदायत और रोशनी से मामूर कर दे। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जो तमाम जहानों में हमआहंगी और इत्तेहाद कायम करे। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे रसूल हैं। आपने मखलूक को बेशकीमत मकारिम अखलाक अता किए। दुरूद व सलाम हो आप पर, आपके आल व असहाब पर जो रोशन व मुबारक हैं, जो मुनाफसत और मुकाबला आराई करते हुए भलाइयों की तरफ दौड़ हैं। ताबिईन पर अता क़यामत उन लोगों पर जो अच्छी तरह उनकी पैरवी करें। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरें, मजहबी अक़दार का सबसे बेहतर दाई बने और दुनिया के सामने उनके सीपों के मोतियों और उनकी तालीमात की किरणों को वाज़े करें। उनके साये में इज्जत और नुसरत हासिल करेंगे। मोमिनों की जमात जिन काबिल फ़ख्र कारनामों की गवाही दुनिया ने दी और उन पर मखलूक मुत्तफ़िक है, उनमें से मजहबी अक़दार और इस्लामी अखलाक को तक़वियत पहुँचाने का कारनामा है, जिससे अल्लाह ने इस मुबारक मुल्क को नवाजा है, जिसका सिलसिला इस मुल्क के मुत्तहिद होने के दिन से आज तक कायम है। चुनांचे इस्लाम का गहवारा, अमन का मन्नाद और हरमैन शरीफैन और हज उम्रा और ज़ियारत के लिए उनका क़स्द करने वालों की देखभाल करने वाला था और रहेगा। अल्लाह का शुक्र है उसके अज़ीम एहसान और नवाजिश पर। हरमैन शरीफैन इन दिनों इंतहाई तवज्जो और पूरी देखभाल से महदूद हो रहे हैं और बोलती बराहीन और खुशबूदार दलाइल में से ताबनाक दलील एक ऐसे मुस्तकिल इदारे का क़याम है जो वली अम्र हफ़िज़हुल्लाह से मरबूत है, ताकि हरमैन शरीफैन में रवादारी, बक़ाए बाहम, इत्तिदाल व मियाना रवी के दीनी पैगाम को मजबूत और फ़आल किया जाए। और अल्लाह ताला का फरमान तमाम दुनिया के लिए बरकत व हिदायत वाला है, पूरा हो। यह हर मुसलमान के लिए काबिल फ़ख्र और तारीख की पेशानी पर चमकती रोशनी है। इसका क़याम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और रहमान के मेहमानों को राहत पहुँचाने के लिए और इस कोशिश के तौर पर हुआ कि आसानी, इत्मीनान, सहूलत और सुकून से पुरताबुदी ईमानी और रूहानी फ़ज़ाओं में उन्हें अपनी इबादत, ताआत और मनासिक की अदायगी पर कादिर बनाया जाए, ताकि क़ासिदीन के दीनी तजर्बे को फ़रोग़ दिया जाए। अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन उनके वली अहद को इन दुरुस्त कोशिशों का और इस्लाम और मुसलमानों के लिए जो कुछ पेश किया और पेश कर रहे हैं उसका बेहतर बदला दे और उसे उनके नेक अमाल की तराजू में रखे। अल्लाह हमारे मुल्क पर तौहीद, इत्तेहाद, सलामती, इस्तेकाम और खुशहाली और तरक्की की नेमत को बरकरार रखे। यह अकीदा है और तौहीद उसका पेशवा है। हिदायत की आयत है और उनकी तरफ निगाहें देख रही हैं। ये उस दिन की वजह से मुल्कों का मोती है जिसने उसे इज्जत का मकाम अता किया और इज्जत बख्शी। दीनी अक़दार और बुनियादों पर कायम उमंग से पुर तरक्याती विजन की रोशनी में उसूल पसंदाना सफर और पुरअज़मत असली तारीखी रज़्म में हम ख्वाब देखते हैं, उसे पूरा करेंगे और उसकी मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है। ऐ वतन तौहीद, हमारे दिल उस पर कुर्बान है जो मुक़द्दस ज़मीन और बड़ी इज्जत है और हक़ का ऐसा मीनारा है जिसने उम्मुल क़ुरा यानी मक्का से रोशनी छोड़ी जो जमीन के हिस्सों पर छा गई। मक्का मदीना और मुसलमानों के क़िबला और उनके मनासिक और शायर के मकाम से मोहब्बत सिर्फ मुतअस्सिब बुहरान ज़दा इंसान के दिल में कम हो सकती है। ऐ अल्लाह, तेरे मुहतरम घर और तेरे रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को समोए हुआ है, वो अहले इस्लाम और रहमान के मेहमानों की खिदमत का क़िबला है। ऐ अल्लाह, तू उसकी इज्जत और सलामती को और उसके इस्तेकाम और खुशहाली को बरकरार रख और उसके वजूद को मुत्तहिद
متحد کرنے والے اس کے بانی اور اس کی عمارت کو بلند کرنے والے پر رحم کر اور ان کی مغفرت فرما، بے شک تو بڑا فیاض اور کرم والا ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام بھیجے مصطفیٰ ہادی امین پر جو مومنوں کا اسوہ اور واضح شریعت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ رب العالمین نے آپ کو کتاب مبین میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ تمام فرشتے اس ہستی پر درود بھیجے جو مخلوقات کو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، اور نیک اہل خانہ پر جن کی تعریف کو میری روشنائی نے دل کے نور سے لکھا۔ ایسا درود جس کی دھیمی و بلند آواز سے سننے والا نہ اکتائے اور جس کے دہرانے اور ظاہر کرنے سے زمانے نہ تھکے۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما نبی مختار پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے معزز برگزیدہ صحابہ ابو بکر سے جو غار میں آپ کے دوست ہیں، عمر فاروق سے جو ملکوں کے فاتح ہیں، عثمان سے جو بڑے فضائل والے ہیں، اور علی سے جو صاحب فکر اور عبرت والے ہیں، باقی تمام دار قرار کی بشارت پانے والے 10 صحابہ سے، ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان جود و کرم سے راضی ہو جا۔ اے غلبہ والے اور بخشنے والے، اے اللہ قیامت کے دن ہمارے نبی اور قدوہ کو ہمارا شفیع بنا اور آپ کی محبت کو ہمارے دلوں میں دائمی بنا دے یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہمیں ان کے حوض تک پہنچا اور ہم ان کے حوض سے پانی پیے، اس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں اپنے والدین اپنی اولاد سے محبت سے بھی زیادہ کر دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو رسوا کر۔ اے اللہ تو اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں ہمیں امن عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما اور ہمارے امام کو حق کے ذریعے تائید فرما اور انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں بھلائی ہو بندوں کی اور شہروں کی۔